নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি আৰু আজিৰ দিনটোত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিলে এখন বিশেষ পত্ৰ। আমি এই খবৰটো জনাই আছো সেই পত্ৰখনত তেওঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ আজি প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি আৰু সেই বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতে মোদীয়ে দাখিল কৰে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড। শনিবাৰে দেশৰ নামত এখন চিঠি লিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাম মন্দিৰ অনুচ্ছেদ 370 আৰু ট্ৰিপল তালাকৰ প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই পত্ৰখনত। ৰাম মন্দিৰ বিবাদ মীমাংসা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আদি সকলোবোৰ দিশ তেওঁ উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ কৈছে ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদ মীমাংসা কৰা হৈছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰথম বৰ্ষৰ উল্লেখনীয় কাম বুলি উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা আৰু সকলোৰে সমতাৰ দিশটোকে কৰিছে প্ৰতিপন্ন। 2014 চনত দেশৰ জনতাই এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ভোট দিছিল। দেশৰ ৰীতি নীতি কিছু সলনি কৰিবলৈ ভোট দিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ সপোন এতিয়া বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত বুলিও উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এখন বিশেষ পত্ৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ আৰু সেইবাবে বহুকেইটা প্ৰসংগ যিকেইটা প্ৰসংগ বিগত এটা বছৰত সমগ্ৰ দেশত উত্থাপিত হৈছিল আটাইকেইটা প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আন্দোলন তাৰ মাজতেই ৰাম মন্দিৰৰ যি মীমাংসা আছিল সেই মীমাংসা হৈ গৈছে। লগতে অনুচ্ছেদ 370 ট্ৰিপল তালাকৰ প্ৰসংগ এই সকলোবোৰ মীমাংসা কৰা হৈছে। এই দিশসমূহ তেওঁ সামৰি এই পত্ৰখনত এই বৰ্ষটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উল্লেখযোগ্য যিখিনি কাম আছিল সেই সকলোবোৰ প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা আৰু সকলোৰে সমতাৰ দিশটোক প্ৰতিপন্ন কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। 2014 চনত দেশৰ জনতাই পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ভোট দিছিল আৰু দেশৰ ৰীতি নীতি কিছু সলনি কৰিবলৈ ভোট দিছিল বুলিও এই পত্ৰত লিখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে লিখিছে যে ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ সপোন এতিয়া বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত। करोड़ दी जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए
व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल में ही स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 लाख कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान शुरू किया गया है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। चीफ